Hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every day at 3 p.m. we come up with the Hindu analysis. Today is 2nd January and that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis of 2nd January. So am I audible, visible? Everything is fine? If I'm audible, visible, if the slides are visible, if my voice is reaching, just write yes in the comments. तो जैसा कि आपको पता है that yesterday also we did a session day before yesterday as well, and today is 2nd January, that is Thursday, and we are here with the Hindu analysis. Okay, am I audible, visible? मेरी आवाज आ रही है? If everything is visible, just write yes. Yes, fine. Good afternoon, Ashnoor Kaur, Pranshi, Sasveki, Goswami. Good afternoon. देखो, फर्स्ट पेज में एक आर्टिकल थी, विल एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन धालीवाल स्टेर सेल्स सेंटर, देन नेट जीएसटी ग्रोथ स्लम्स टू 3.3%. तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे. देखो इसमें क्या है, अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगी, ये जो एक्चुअली क्या है, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड एज मिस्टर धालीवाल हु इज एक्चुअली ऑन फास्ट, है ना, फास्ट अनटू डेथ टाइप समथिंग, या हंगर स्ट्राइक जिसको कहते हो आप लोग, हंगर स्ट्राइक पर है. And he is actually a farmer leader demanding legal guarantee for MSP. Plus farm loan waiver. These are the main two guarantees. And legal guarantee for MSP में they are asking for implementation of MS Swaminathan committee. Recommendation of C2 plus 50%. तो ये भी मैंने ऑलरेडी बताया है. I've already discussed what is C2 plus 50%. Okay. खैर, तो पहले आप ये बताओ कि who is the Minister of Agriculture and Farmer Welfare? Can anyone tell me? Actually, his photo is in front of you. So if you can answer, I'll be very happy. Minister of Agriculture and Farmer Welfare. अभी कौन है Agriculture Ministry? कृषि मंत्री कौन है इंडिया के? It was actually mentioned on the first page, so you should be knowing he is actually ex Chief Minister of Madhya Pradesh. Nah, ex CM of Madhya Pradesh. His name is Mr. Shivraj Singh Chauhan. Yes, Pranshi, Ashnoor Kaur, Adarsh Jha, you all are right. Very good. ठीक है. So Union Minister of Agriculture, Mr. Shivraj Singh Chauhan, actually, है ना, he's actually, you can say he's in the photo as well, meeting with officials in Krishi Bhavan and all. Here on Wednesday, said that the center will abide by Supreme Court's direction to on the indefinite hunger strike by farmer leader Jagdish Singh Dhaliwal. Okay, so abhi we are not actually discussing much because we are waiting for the Supreme Court judgment. उसके बाद ही कुछ finally detail discuss किया जाएगा. बस दो तीन चीज पता होनी चाहिए. First thing I have discussed that they are demanding legal guarantee for MSP. And they are saying that C2 plus 50% formula as recommended by MS Swaminathan committee should be implemented. और ये पूछा हुआ है CLAT में question that which committee recommended this C2 plus 50% formula. Okay? तो अगर आपको करना ये है, अगर आपने को नहीं पता, if you do not know कि सर क्या है C2 plus 50% formula, please tell me. So I would suggest go to our YouTube channel, live वाले section में जाना, on our the same YouTube channel on which you are watching this class. ये 31 दिसंबर की क्लास है. इसमें मैंने बिगिनिंग में, इफ यू वॉच द इनिशियल 10-15 मिनट्स वीडियो, यू विल गेट टू नो इन डिटेल. ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है 31 दिसंबर की क्लास में, तो जाके आप देख लीजिएगा जरूर से. ओके ओके सॉरी. एंड द टू मेन ऑर्गेनाइजेशंस, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन जो एक है किसान मजदूर मोर्चा एंड अनदर इज संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल. सो दीज आर एक्चुअली फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट एंड ऑल. अब इसमें एक चीज और है, एक तो हम लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी की बात कही जा रही है कि लीगल गारंटी दीजिए. दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ फार्मर इज. द सेकंड इज दे आर डिमांडिंग फार्म लोन वेवर. ओके, नाउ व्हाट इज फार्म लोन वेवर, जिसको हम लोग देसी लैंग्वेज में कहते हैं, मतलब हिंदी में कहेंगे कि कर्ज माफी, है ना, ये कहते हैं ना, यानी जो द लोन्स दैट हैव बीन टेकन बाय द फार्मर्स शुड बी फॉरगिवन. मतलब ये एक और डिमांड है. अब इसमें बहुत सारी चीजें होती है. वी विल डिस्कस बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्म लोन वेवर बिकॉज
जनरली क्या होता है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज वेरी गुड. इकोनॉमिस्ट के बारे से अगर आप पूछोगे, सो जनरली दे डू नॉट फेवर. एंड I'll discuss both the arguments about farm loan waiver. तो जो एक फार्म लोन वेवर का मतलब जो किसान ने कर्ज लिया है वो माफ कर दीजिए, इसलिए कि किसान के पास इतना मतलब हो सकता है. दोज हु सपोर्ट द आइडिया, दोज हु सपोर्ट फार्म लोन वेवर, जो फार्म लोन वेवर को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि ऑफ कोर्स सिंस फार्मर्स आर पुअर and if they have taken loan and they are not able to pay back, then they should be forgiven. यानी किसान की कर्ज माफी माफ कर देना चाहिए बिकॉज वो पुअर है, उनके साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है एंड ऑल. सो दिस इज द सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट. नाउ व्हाट इज द अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट? अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ फार्म लोन वेवर. सो दो तीन आर्ग्यूमेंट होता यह है कि जब कर्ज माफ करती है गवर्नमेंट, तो जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो माफ करती है ना. If you are a farmer and you have taken loan from the bank, the government can forgive that. But if you have taken loan from local money lender, then it will not be forgiven. और प्रॉब्लम क्या होती है, जो ज्यादा गरीब फार्मर होता है, the one who is more poor farmer, he or she take loans from money lender, not from bank. So basically, if you are asking the government to forgive the money loans, basically it is perhaps comparatively better farmers who will get the benefit. जो एकदम गरीब किसान होता है, जो एकदम पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बैंक हो सकता है जाए भी नहीं, उसकी हिम्मत भी नहीं हो, तो वो मनी लेंडर से ले लेता है एंड दिस एक्चुअली द इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई. एक ये इशू होता है. एंड दोज हु आर स्लाइटली बेटर एट लीस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज, दोज फार्मर्स हु आर कंपैरेटिवली बेटर, दे टेक लोन्स फ्रॉम द बैंक्स. सो इफ यू आर आस्किंग टू फॉरगिव दिस वन, देन परहैप्स यू आर नॉट actually helping the most poorest one rather than comparatively better farmers are being helped. दूसरी चीज ये है कि फार्म लोन वेवर में होता यह है कि अगर एक बार फार्म लोन वेवर कर दिया गया तो हर बार लोग यही एक्सपेक्ट करेंगे. Especially what happens is why the economists criticize the concept of farm loan waiver is because कि बहुत बार क्या होता है, lot of times it happens that just before election the state government announces in every state that okay, I will forgive the loans. तो होता क्या, जो देने के लायक भी है, the one who has a capability to return back the loan, he or she will say कि okay, I'm waiting for the elections to happen. Just before the election, most likely the government, my state government will forgive the loan or something like that. तो इससे क्या होता है, पुअर बैंकिंग प्रैक्टिसेस कहलाएगी वो. तो मतलब उसको बहुत हेल्दी प्रैक्टिसेस में नहीं आया ना कि बैंक ने लोन एक्सटेंड किया, अब लोग जो है वापस नहीं कर रहे, जिनके पास है कैपेसिटी वापस करने की वो भी नहीं कर रहे हैं, इसी उम्मीद में कि शायद गवर्नमेंट माफ कर दे. सो दैट विल लीड टू एक्चुअली बिकॉज तो जो माफ किया जा रहा है वेवर ऑफ लोन्स, ये कहां से हो रहा है, किसी के टैक्स बेस की मनी से ही तो होगा, है ना. सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज रिगार्डिंग दिस एज वेल. ठीक है, तो खैर दोनों पक्ष है, देयर आर बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्म लोन वेवर. वन अदर एस्पेक्ट इज लाइक पॉजिटिव एस्पेक्ट इज दैट इट विल हेल्प द फार्मर्स रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस एंड ऑल. ओके, so these are some of the issues about it. Similarly, now we are waiting for the judgment of the Supreme Court to come. Then after we will discuss in detail कि क्या हुआ finally. ठीक है, okay. Now first page पे एक और आर्टिकल थी, नेट जीएसटी ग्रोथ स्लम्स टू 3.3%, यानी जीएसटी का जो कलेक्शन है वो कम हो गया. स्लम मतलब कम होना, 3.3% एंड ऑल. अब ये नंबर्स, ये फैक्ट्स नहीं याद रखने. द रीजन इज वेरी सिंपल, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कुछ और नंबर होगा. ठीक है, तो ये इट कीप्स ऑन चेंजिंग. So there is no meaning of remembering these numbers, percentage and all. But you should know something about GST. यानी ये परसेंट जैसे अभी आपको दिखा रहे कि स्लम कर गया, हो सकता है जब आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पर बढ़ गया हो. ठीक है, so rather than knowing this, because this number keeps on changing after every 3 months, you will see new numbers. It is better to know about GST. Like for example, which constitutional amendment brought the concept of GST? And when do we celebrate GST Day? GST Day कब मनाते, बताइए. I am waiting for the response. Anyone? GST मतलब Goods and Services Tax. It was brought through constitutional amendment.
by 101st amendment 2017 में हुआ था. Okay, so C is the right answer to this question. Second, GST day कब मनाते हैं? Actually 1st July 2017 को this was finally passed. So that is why 1st July is celebrated as GST day. तो ये आपको पता होना चाहिए. Okay, because GST comes in the news again and again. अभी recently news में था some changes in GST. Recently we had seen and all. खैर, तो जो जीएसटी का चेंजेस है डिसीजन का, देखो ये है ना जीएसटी इंप्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 एंड ऑल, है ना. इट वाज ब्रॉट बाय 101st अमेंडमेंट. एंड एक चीज और पता होनी चाहिए कि लोग को ये नहीं पता होता कि सर डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज एक्चुअली एन इनडायरेक्ट टैक्स. यू शुड नो दिस. एंड अभी रिसेंटली आई थिंक फ्यू डेज बैक वी हैव सीन सम न्यूज रिगार्डिंग सम डिसीजंस टेकन बाय जीएसटी काउंसिल रिगार्डिंग imposing of some टैक्सेस, है ना, और चेंजेस इन जीएसटी. तो उस पर काफी न्यूज वगैरह भी आया था. तो जीएसटी काउंसिल टेक्स दिस डिसीजन. सो जीएसटी काउंसिल इज एक्चुअली अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ये पता होना चाहिए. इट मींस इट्स प्रोविजंस आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ प्लीज टेल मी व्हिच आर्टिकल टॉक्स अबाउट दिस. 281, 279 capital A, 321, 291. What is the right answer? I'm waiting for the response. Even if you if you do not know it, you can have guess कर लो. अगर नहीं पता है तो try करो, शायद सही हो जाए. The right answer is actually B, 279 capital A. So B is the right answer. 279 capital A talks about the GST council, the composition of GST council. उसके जो chairperson होते हैं, that's actually the finance minister is the chairperson of the GST council. Okay, and उसमें states के भी finance ministers participate करते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो यूनियन में मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक होते हैं उनके भी ऑफिस मिनिस्टर्स रहते हैं. यस, द राइट आंसर इज बी एंड आदर्श झा वाज राइट. यस, बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नाउ एक और फर्स्ट पेज में आर्टिकल थी, ट्रक मोव्स डाउन 10 न्यू ईयर रेवेलर्स इन न्यू ऑरलियंस. मोव्स डाउन का मतलब होता है गाड़ी चढ़ा देना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि ट्रक चढ़ा देना, समथिंग लाइक दैट, लाइक crush karna, like it killed 10 people who were celebrating New Year and all in New Orleans. New Orleans is a place in USA. So a US citizen having I think might be inspired by ISIS, something like that, and he actually crushed the people and all while driving the trucks. So this was in the news. He fatally shot in exchange of gunfire, etc. He was later on killed and all by the police. So where exactly is New Orleans where this incident happened? Here is India. This is US. So US में ये वाले जो प्रोविंस है ना, लुजियाना प्रोविंस, लेट मी जूम इट. ये लुजियाना प्रोविंस है. इस लुजियाना में न्यू ऑरलियंस एक जगह है. Here actually this incident happened. तो यहाँ पर है US. अगर ये पूरा US है तो यहाँ पर you will find New Orleans where actually this incident happened. So that was in the news. You should be doing. Now let's move on. There was another article. Actually, it became quite prominent where Ukraine halts transit of Russian gas to Europe. तो halts का मतलब क्या होता है? रोक लगा देना, है ना, stop. Transit of Russian gas to Europe. तो यूक्रेन के जरिए रशिया का गैस जो है वो यूरोप जाता था, उसको उसने ब्लॉक कर दिया. So first of all, let me show actually. देखो ये रशिया है, this is Ukraine. Okay, and ये पूरा यूरोप है एक्चुअली, है ना. I hope you are aware. तो रशिया जो है ना, रशिया में खास की ये वाला जो रीजन आपने सुना होगा, यहाँ पे साइबेरिया रीजन है रशिया का. यहाँ पे ना नेचुरल गैस रशिया में बहुत होता है. I hope you are aware. It is quite famous for its natural gas. तो जो नेचुरल गैस है उसकी पाइपलाइन है बहुत जगह. एक पाइपलाइन, कुछ पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है. सो इट क्रॉसेस वाया यूक्रेन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज. ओके, जैसे यहाँ पे बना हुआ होगा, लेट मी शो. आप देखो ये यूक्रेन है, ये व्हाइट वाला, और राइट साइड में जो है ये रशिया है. रशिया, इधर रशिया है पूरा. ठीक है,
तो इफ यू सी इट केयरफुली तो रशिया से पाइपलाइन आ रही है ना, एक है दो है से, विच इज पासिंग थ्रू यूक्रेन। तो यूक्रेन ने ये सारी पाइपलाइन बंद कर दी जो नेचुरल गैस सेल करने की। सो देखो नेचुरल गैस चूंकि रशिया में ज्यादा होता है, इफ रशिया इज सेलिंग नेचुरल गैस इट विल अर्न मनी, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसको कहते हैं। तो अगर रशिया एक्सपोर्ट ज्यादा करेगा सो इट अर्न। सो व्हाई हैज रशिया ब्लॉक्ड इट? Because I hope you are aware Russia-Ukraine war is happening. There are the conflicts and all since February 2022. इसीलिए इसी के कंटेक्स्ट में यूक्रेन had decided to stop it. तो यही है यूक्रेन ऑन वेंसडे halted यानी रोक लगा देना Russia's gas supply to European customers through its pipeline network after a pre-war transit deal expired at the end of the last year. कोई डील था जो जंग से पहले डील हुआ था कि रशिया यूक्रेन अलाउ करेगा यूरोप में नेचुरल गैस पास करने का, तो वो दिसंबर 2024 को वो डील एक्सपायर कर गई। So that deal got expired. Now Ukraine decided that now we will not renew the deal. We will stop natural gas, Russia's natural gas flow to Europe. तो चूंकि वो डील जो थी यूक्रेन ने पहले से कर रखा था वॉर से पहले, तो वो जब डील का टेन्योर खत्म हो गया यानी उसका पीरियड खत्म हो गया 31 दिसंबर 2024 को, so they have decided to stop the natural gas export. Okay, so that is what you should be knowing. Ukraine's energy minister confirmed on Wednesday morning that Kyiv is the capital of Ukraine, had decided to stop the transit and all. This is a historic event and all. तो यही इसी से रिलेटेड बात थी। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आए थे क्लैट में 2021 में, लाइक फॉर एग्जांपल हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन, तो उसमें 3-4 ऑप्शन दिया था और सब क्लोज ऑप्शन था, जैसे व्लादिमीर ओ जेलेंस्की, व्लादिमीर एम जेलेंस्की, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था, उनकी स्पेलिंग भी चेंज कर करके, तो ये आंसर है व्लादिमीर ओ जेलेंस्की इनका नाम है। सो दिस इज द नेम। एंड एक और क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट वाज ही डूइंग है ना before the becoming the president. So he became the president on 20th May 2019. So before that what was his profession? So he was earlier, before that he was a comedian. ये भी आया था question. And another thing was that what is the currency of Ukraine? कोई बता सकता है what is the currency of Ukraine? I am waiting for the response because this is a previous year question. Can anyone tell me? This was asked in 2023 CLAT paper. CLAT 2023 के पेपर में आया था। Anyone? Currency of Ukraine. The right answer is Ukrainian Hryvnia. Yes, Pro Gaming has answered me correctly. Hryvnia पढ़ते हैं, ठीक है? So just remember it. Okay. Fine. So this was we were discussing. Now let's move on to editorial. जैसे मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पेज पढ़ना है और डायरेक्टली एडिटोरियल पर आना है, ठीक है? सो एडिटोरियल पेज नंबर 6 में था आज, तो एडिटोरियल वाला पेज है। सो ये दोनों ऑथर बेस्ड आर्टिकल होती है, साइड में जो होती है वो ऑथरलेस आर्टिकल होती है, मींस इट डज नॉट हैव लाइक there is no author because names there is no author name. The reason is actually it represents the Hindu editor's opinion. ठीक है? So the first main article है, it is talking about the sorry state of India's parliamentary proceeding, written by a Lok Sabha MP Mr. Shashi Tharoor, and he is a member of parliament from the state of Kerala, and he has written something about it कि पार्लियामेंट शायद ठीक से नहीं चल पा रहा, उसी से रिलेटेड है। तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे what he is actually talking about, but we'll be asking some questions related with parliament. जैसे for example, here's the question: how many sessions are there in one year in parliament? कितने sessions होते हैं? And can you please tell me the name of all those sessions? Anyone? तो अपना मतलब इस आर्टिकल में लिख रहे हैं कि डिसरप्शन हुआ पार्लियामेंट में एटसेट्रा एंड ऑल, ठीक है? तो हमको ये पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में कितने सेशन, बिकॉज दीज आर आस्क्ड इन द एग्जाम, वी हैव सीन हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन पार्लियामेंट एंड व्हाट आर देयर नेम्स. Pro Gaming is saying 3. Yes, you are right, Pro Gaming. There are 3 sessions and what are the names? Yes, Ridhima Singh, you are also right. उस 3 सेशन का नाम बताना है, कौन कौन से सेशन होते हैं.
देखो, एक फरवरी में होगा, 1 फरवरी में जो बजट पेश किया था, दिस इज कॉल्ड एज बजट सेशन, वो भी नेक्स्ट मंथ शुरू होगा, है ना। फिर दूसरा होता है जून जुलाई के आसपास, जिसको हम लोग कहेंगे, हाँ, मॉनसून सेशन कहते हैं, नॉट समर, मॉनसून सेशन वर्ड लिखते हैं। फिर दिसंबर में होता है, दिस इज कॉल्ड एज विंटर सेशन। यस, नमिता वर्मा, रिधिमा सिंह, यू बोथ आर राइट। ठीक है, सो बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये तीनों का नाम नहीं मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली सेज दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 मंथ्स बिटवीन द टू सेशन। बस ये लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि 6 महीना से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब 1 साल में 2 भी चला लोगे तो हो सकता है काम चल जाए, बट the practice is, the convention says that we have been doing it like 3 different sessions. Okay, खैर, तो इसकी बात हो रही थी। दूसरी बात, जो ऑथर बात करें वो श्याम बेनेगल साहब की बात करें, recent demise of a distinguished director. So Shyam Benegal was a very famous filmmaker. He died very recently, तो इनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। He was born in Hyderabad state before independence and died in Mumbai on 23rd December 2024. Okay, and he has won a lot of award like Dada Saheb Phalke Award, India का highest award है in the field of cinema. Then he has won Padma Shri, the 4th highest civilian award. Then बाद में पद्म भूषण भी जीता था, जो कि 3rd highest civilian award है। ठीक है, तो ये सब उनके अवार्ड्स हैं। 1976 में पद्म श्री जीता था, 4th highest civilian award, और ये 3rd highest civilian award है। और दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ना, हाईएस्ट अवार्ड सिनेमा के फील्ड में हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, फिर और भी ये 3 शुरू की जो 3 मैंने बताई प्रोमिनेंट अवार्ड से। इनफैक्ट वो राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे 2006 से 2012 आल्सो। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आल्सो यू शुड बी नोइंग। ओके, सो एंड ही हैज डायरेक्टेड अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड ऑल, तो जस्ट हैव एन आइडिया बिकॉज ही वाज इन द न्यूज़, सो यू शुड नो। खैर, तो यही सब बात हुई। इसमें अब हम बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं इस आर्टिकल में, बिकॉज आई थिंक उसमें से जितना भी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, वी हैव डिस्कस्ड। अब देखो, एक साइड में आर्टिकल थी टू लिटिल टू लेट, ये वाली है ना। this is being talked about is about the Manipur. Like, I hope you are aware, we have discussed so many times that here is the state of Manipur in India, and we have seen violence, Kokis versus Metis, and because of which, in fact, recently the Manipur Chief Minister, Mr. N. Biren Singh, asked for apology also. So that was also in the news. तो इसमें इसी से रिलेटेड बात करें, इसमें 2-3 चीजें हैं जो डिस्कस करने के लायक है। एक उन्होंने लिखा होगा, हाँ, प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, दिस इज डिस्कस्ड इन दिस एडिटोरियल समवेयर, आई वाज रीडिंग इट, तो कहीं पर प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम की बात कही गई है। लेट मी सी वेयर एग्जैक्टली इट इज रिटन। ओके, सो समवेयर इट इज देयर, अभी मिल नहीं रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, जिसको कैंसिल कर दिया गया। प्रोटेक्टेड एरिया रेजिम, व्हेन यू रीड द एडिटोरियल यू विल सी दिस वर्ड, और एक फ्री मूवमेंट रेजिम, ये दोनों बताता हूँ। सो हुआ ये था कि ये काफी न्यूज में था, एंड रिसेंटली द गवर्नमेंट, देखो 20 दिसंबर 2024 की न्यूज है, दे हैव डिसाइडेड टू स्टॉप दिस। Okay, the Union Home Ministry, a foreign national, is not allowed to visit a protected area as laid down under Foreigners Protection Act, Order 1958. तो होता क्या है, पहले आप समझ लो। जो मणिपुर है, इनिशियली प्रोटेक्टेड एरिया रिजीम नहीं था, मतलब अलाउ किया गया था अर्लियर कि फॉरेनर्स सिटीजन जो है वो जाए यहाँ। Why? Because if more people will go into the tourism will get promoted, to promote tourism. Okay, tourism promote करना क्यों जरूरी है? Because when there is more tourist in a particular place, so what will happen? It creates employment. एंड अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा टूरिस्ट जाएंगे तो क्या होगा? वहां की जो लोकल मार्केट है उसका सेल ज्यादा होगा, जो दुकान है, शॉप्स है, राइट? सो इट विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, इट विल इंप्रूव जीडीपी ऑफ दैट स्टेट। यस और नो, है ना? तो इसीलिए जनरली क्या होता है, अगर इफ एवरीथिंग इज फाइन, इफ देयर इज स्टेबिलिटी, देन द गवर्नमेंट प्रमोट्स टूरिज्म, अलाउ फॉरेनर्स टू गो इन दोज एरियाज। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ? अभी रिसेंटली क्या हुआ कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिवर्स इट और प्रोटेक्टेड एरिया इन्फोर्स कर दिया रेजिम। व्हाई? बिकॉज चूंकि वहां पर हाँ, इट पुट्स कर्व ऑन एंट्री ऑफ फॉरेन नेशनल्स। कर्व मतलब क्या होता है? नहीं जाने देना।
So it stopped the foreign nationals from going, because why? Because ho sakta hai, maybe there might be some like agents of some other country or something like that. Things are not very fine there in Manipur. So if any foreigner will come, maybe the strife or the division between the society might increase or something like that, since there is instability or there is no like 100% stability there. इसलिए दूसरा चीज था, एक और चीज जो कैंसिल किया गया था, ये लास्ट ईयर फरवरी में, ये काफी न्यूज में था लास्ट ईयर भी, दैट्स कॉल्ड एज फ्री मूवमेंट रेजिम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, and we had seen a lot of editorials related with that. So it is in last para. ठीक है प्रांशी, द हिंदू में लास्ट पैरा में था. यस, थैंक यू. तो फ्री मूवमेंट रेजिम जो है, इसमें होता ये था कि अंडर फ्री मूवमेंट रेजिम एनी मेंबर ऑफ अ हिल ट्राइब हु इज अ सिटीजन ऑफ आइदर ऑफ इंडिया और म्यांमार who reside within 16 kilometers of border on either side can cross with a border pass valid for a year and can stay up to 2 weeks. देखो होता क्या है, अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ट्राइबल पॉपुलेशन है, और यहाँ पर जो है उनके अंदर मतलब एथनिक सिमिलैरिटी है, और एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है बहुत सारे उनके रिलेटिव्स उधर रहते हो. ओके, तो एक्चुअली जब स्टेबिलिटी थी, सो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था 16 किलोमीटर के बॉर्डर्स पर कि आप जो है बिना वीजा लिए, विदाउट वीजा, सिर्फ आपके पास एक बॉर्डर पास होगा तो आप इस कंट्री से उस कंट्री, अगर आप म्यांमार के तो इंडिया और इंडिया के तो म्यांमार जा सकते हैं विदाउट वीजा, बट हैविंग अ बॉर्डर पास. या बॉर्डर पास लेकर के 16 किलोमीटर के रेंज में, 16 किलोमीटर के रेंज में आना जाना कर सकते हैं. एंड ये बॉर्डर पास आपको 1 साल के लिए मिलेगा, एवरी ईयर इट विल बी रिन्यूड. और ये बॉर्डर पास जो है इससे आप 2 वीक के लिए उधर जा सकते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, लाइक यू कैन क्रॉस आइदर ऑफ द टू साइड्स. So this free movement regime was to promote the movements of people and all, because there were the people of same ethnicity living on the cross border side and all. तो उसको promote करने के लिए, so ये decision गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और म्यांमार के साथ मिलकर के डिसाइड किया गया था. Now what happened was, I hope you are aware, अगर आपने थोड़ा बहुत म्यांमार का के बारे में पढ़ा होगा. So on 1st February 2021 we have seen what? Military coup. पहली फरवरी 2021 को यहाँ पर मिलिट्री कू आ जाता है. So when military coup happens, what happens? तो होता यह है कि आर्मी कम्स टू पावर, तो उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं. सो विद इन द कंट्री देयर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, लॉट ऑफ एक्चुअली इंस्टेबिलिटी आने लगती है. वी स्टार्टेड एक्चुअली सीइंग कि डिफरेंट ग्रुप्स, रेबल ग्रुप्स बन जाते हैं. उसकी वजह से 2-3 चीजें होती हैं. कुछ लोग यहाँ आ जाते हैं मूव करके, रेफ्यूजी, एज अ रेफ्यूजी. प्लस दूसरी चीज क्या होती है कि एक और यूएनओडीसी से न्यूज आती है कि यहाँ पर ड्रग्स का तो नेटवर्क ऑलरेडी था. इट बिकम्स एक्चुअली द म्यांमार बिकम्स वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपीएम. ओपीएम मतलब एक तरह का ड्रग्स होता है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि चूंकि अब फ्री मूवमेंट रेजिम का अगर फायदा उठा करके ड्रग्स का भी इंपोर्ट किया सकता है, समथिंग लाइक दैट, द मूवमेंट ऑफ ड्रग्स एंड ऑल, सो इट विल बी हार्मफुल फॉर द कंट्री. प्लस रेफ्यूजी का इशू होने लग सकता है इफ वी अलाउ फ्री मूवमेंट रेजिम टू कंटिन्यू. So that is why the government decided to scrap this. Scrap मतलब कैंसिल करना, फ्री मूवमेंट रेजिम को कैंसिल कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. So these two things, protected area regime and free movement regime, आपको पता होना चाहिए. You should be knowing it. ठीक है? Okay, now let's move on to the second half में जो नीचे में आर्टिकल थे, ये वाले आर्टिकल, this actually we'll be discussing, and this is talking about वही same संयुक्त किसान मोर्चा non-political. This is a farmer organization, and the leader of that organization, Mr. Dhaliwal, is on fast and hunger strike, जिसको कहते हैं ना. He's a 70-year-old cancer patient also and all. So they are demanding legal guarantee for MSP and farm loan waiver. है ना, MS Swaminathan, as per formula of MS Swaminathan committee, है ना. तो MS Swaminathan committee ने C2 plus 50% का फॉर्मूला दिया था. अब ये फॉर्मूला के लिए अब 31 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस, आई हैव डिस्कस्ड इट. गो एंड वॉच ऑन अवर यूट्यूब चैनल, लाइव सेक्शन में जाना. 31 दिसंबर का द हिंदू एनालिसिस में मैंने डिस्कस किया है व्हाट इज MS स्वामीनाथन फॉर्मूला ऑफ C2 plus 50%. ठीक है ना. तो अब तो सुप्रीम कोर्ट, लेट्स सी, तो सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी भी बनाई है, उनसे कंसल्टेशन वगैरह हो रहा है. तो अब कुछ आएगा फाइनली फैसला, तभी हम लोग डिस्कस करेंगे. And we will discuss further when there will be any judgment or any other final decision being taken in this regard. अब देखो, एक ऑपोजिट पेज होता है, यानी जैसे एडिटोरियल होता है उसके सामने का एक पेज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ओपिनियन पेज. सो पेज नंबर 7. ओके, सो पेज नंबर 7 में एक आर्टिकल, यूथ एट द फोरफ्रंट ऑफ क्लाइमेट लिटिगेशन.
क्लाइमेट लिटिगेशन मतलब क्या होता है? लॉज. तो क्लाइमेट लिटिगेशन है ना, लिटिगेशन मतलब केसेस एक्चुअली, है ना, यानी बहुत सारे यूथ मतलब यंग पीपल आर एक्चुअली फाइलिंग पेटिशंस इन द कोर्ट्स फॉर ensuring the climate justice. ये सब वर्ड लिखा जाता है, आपने सुना होगा climate justice, है ना, एंड ऑल. तो बहुत सारे फेमस इंडिया में भी केसेस हुए हैं. सो द ऑथर इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट केसेस फ्रॉम यूएसए. तो यूएस के केसेस तो नहीं जानना है उतना, मोंटाना सुप्रीम कोर्ट केस है ना, नहीं, ये हेल्ड इन मोंटाना केस, है ना, इन यूएस इन हिस्टोरिक जजमेंट एंड ऑल. तो इतना डिटेल नहीं जाना है, लेकिन कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए when you are talking about climate litigation. एक बहुत फेमस केस है, if I'm not wrong, MC मेहता केस, है ना. This case is after that tragedy, I don't remember. हाँ, भोपाल गैस ट्रेजेडी के पास ये बहुत फेमस केस हुआ था, एनवायरमेंट से रिलेटेड केस है, ठीक है. तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, या यू शुड हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट दिस केस. तो इसमें है क्या, और अभी रिसेंटली कई सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट, है ना, is a fundamental right under article 21 of the constitution, है ना. 21 में राइट टू लाइफ होता ना, उसी के अंडर में राइट टू क्लीन एनवायरमेंट. तो राइट टू लाइफ का ये में मतलब होता है कि एक इंसान को साफ सुथरी हवा मिले, है ना. अगर पॉल्यूटेड एनवायरमेंट मिल रहा है तो आर्टिकल 21 का एक तरह से वायलेशन है. सो दैट इज व्हाट, सो वी हैव सीन केसेस रिलेटेड विद दैट. फिर इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ने पूरा, पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया और एक नया ट्रिब्यूनल बना दिया था, एनजीटी एक्ट पास करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2010 में दिस एक्ट वाज पास्ड. प्लीज चेक द ईयर, एज फार एज आई रिमेंबर 2010. यस, भोपाल गैस ट्रेजेडी, यस प्रशिक गोविल, यू आर राइट. हाँ, उसके बाद एमसी मेहता केस वगैरह हुआ था. तो एनजीटी एक्ट एक पूरा सेपरेट ट्रिब्यूनल बनाया गया है. वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ट्रिब्यूनल इज वेरी नियर टू द कोर्ट, नॉट एग्जैक्टली द कोर्ट बट वेरी सिमिलर टू द कोर्ट, ठीक है. तो इसमें वो एग्जांपल ही बता रहे हैं कि रिधिमा पांडे एक 9 ईयर ओल्ड है, उन्होंने एनजीटी में पिटीशन फाइल किया एंड ऑल. तो एग्जांपल सारे नहीं याद होने चाहिए, बट ये जो इंपॉर्टेंट, जैसे एनजीटी इंस्टीट्यूशन पता होना चाहिए. दिस इज एन इंस्टीट्यूशन व्हिच इज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड ऑल, ठीक है. सो ये सब आपको पता होना चाहिए. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2010. ओके, है ना. एनजीटी एक्ट वाज पास एंड ऑल, और इंडिया थर्ड कंट्री बना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास जिसने इस तरह का कोई स्टैचुटरी मैकेनिज्म बनाया. स्टैचुटरी मैकेनिज्म मींस it is a body which is set up as a result of a parliamentary law. तो मेन इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ऐसे रीजनल हेडक्वार्टर्स भी है, बट मेन हेडक्वार्टर यू विल फाइंड इट इन न्यू दिल्ली. एंड जनरली द चेयरपर्सन जनरली जो होते हैं फॉर्मर जजेस होते हैं, जैसे अभी जो है ना अफरोज अहमद हुआ है, बट जनरली देयर आर जजेस एंड ऑल. ओके, नाउ सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस, है ना. नाउ एक चीज और जानते हैं, इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, बट कुछ हेडलाइन जस्ट पता होनी चाहिए. जैसे स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स फ्रॉम बैड टू वर्स इन बिहार एंड आसाम. ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है, तो इसके डेटास नहीं याद रखने. ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि जैसे बच्चा है कोई, ठीक है, किसी बच्चे ने मान लो उसका एडमिशन हुआ नर्सरी में, एंड वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट पुअर पीपल, ठीक है, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं. तो गवर्नमेंट स्कूल में उसने एडमिशन किया, तो नर्सरी पढ़ा, फिर जो भी होता होगा, एलकेजी यूकेजी व्हाटएवर इज द थिंग, एलकेजी यूकेजी क्लास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12, फिर कॉलेज, ऐसे होता है ना. ओके, अब है क्या, मान लो फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, वो नर्सरी पढ़, एलकेजी यूकेजी 3 4 5 के बाद ड्रॉप कर दिया, मतलब उसके बाद पढ़ाई छोड़ दिया. दिस इज कॉल्ड एज ड्रॉप आउट. और जनरली इट हैपेंस इन केस ऑफ अ पुअर चाइल्ड. गरीब के घर में मतलब जो होता है बेचारे, उसके यहाँ ज्यादा होता है कि वो ड्रॉप आउट रेट जनरली ज्यादा होता है. और कई बार इंसिडेंट देखा गया है कि गर्ल चाइल्ड में, इन वो विलेज एरिया की, अगर उसको सेफ्टी फील नहीं हो रहा है स्कूल जाने में, या स्कूल बहुत दूर है और समथिंग लाइक दैट, देन आल्सो इन दैट फियर आल्सो शी ड्रॉप्स आउट और समथिंग लाइक दैट. या अगर मेल चाइल्ड भी है, उस गरीब है मतलब, तो हो सकता है नहीं उसके पेरेंट्स जो अफोर्ड कर पाए, या कोई और रीजन हो, सो द चाइल्ड गोज इन चाइल्ड लेबर. क्लास 5 6 में हो गया, 12 13 14 साल का हो गया, तो फिर वो चाइल्ड लेबर करने लगा और समथिंग लाइक दैट, और समटाइम्स इवन बिफोर 2 3 क्लास में ही. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉप आउट रेट. तो अगर ड्रॉप आउट रेट ज्यादा रहेगा, इट्स अ बैड न्यूज. इसका मतलब है कि बच्चे पूरा पढ़ नहीं रहे, बीच में छोड़ के चले जा रहे हैं. सो प्राइमरीली उनके सर्कमस्टांसेस से ही ड्रिवन होता है, कि उनके हालात ऐसे होते हैं कि वो ड्रॉप कर देते हैं. दैट इज व्हाट दिस इज. अब देखो, ये नंबर्स नहीं याद रखना है,
because I don't think ये number आपसे पूछेंगे कि exact कितना है. तो these are some of the surveys done. बट एक रफ आइडिया होना चाहिए कि ताकि अगर आपको कोई एडिटोरियल आए या कोई आर्टिकल आए उसमें पैसेजेस में ड्रॉप आउट डेट लिखा हुआ है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना. दैट्स मोर इंपॉर्टेंट. नाउ एक टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल थी. ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आई थिंक हो सकता है हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर लेते हो तो शायद सब में नहीं आता है हर इसमें एडिशन में, बट ओके आई एम डिस्कसिंग इट. द रेस फॉर फाइटर्स द इंडियन एयरफोर्स डायलेमा. ओके, तो बेसिकली इस आर्टिकल में ये बता रहे हैं कि चाइना के पास 2 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, becoming the only country other than US to have more than 1 5th generation aircraft. तो यूएस के बाद चाइना दूसरा कंट्री है जिसके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. मतलब 2 ही कंट्री है करंटली अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल. जेट मतलब मिलिट्री जेट कह रहे हैं, द एयरफोर्स की जो जेट होती है. एंड एक्चुअली दे आर एडवांसिंग वेरी फास्ट एंड ऑल. तो ये सब लिखा हुआ है. तो नाउ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू. तो वन थिंग, वी हैव बॉट राफेल जेट्स. So I think around 36 के आसपास we have taken. So we have bought this Rafale jets from which country? And what is the name of the company that has made this? अच्छा, राफेल को जो है ना, I could search it कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है कि नहीं, तो उसको लिखते हैं 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है. यानी पूरी तरह 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है. इसलिए इसमें लिखा हुआ है ना कि यूएस और चाइना के पास सिर्फ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है. So the Rafale jets we have bought is bought from France. Yes, pro gaming, you're right. France से लिया है. That is 4.5 generation fighter aircraft. अब वो कैसे define करते हैं I do not know in detail. They have some rules or the with the help of which they define कि this is a 5th generation aircraft, this is a 4.5, something like that. Yes, France is right. What is the name of the company? Actually मैंने spelling गलत लिख दिया राफेल की, RAFALE लिखा था है राफेल जेट. ठीक है. Rafale jets is not from Russia, it's from France. ठीक है, we have bought from France and the name of the company that has manufactured it. इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था CLAT 2020 में Rafale jet से रिलेटेड. शायद ये नाम कंपनी का नाम नहीं पूछा था, बट इससे रिलेटेड सारी चीजें पूछा था. What is the name of the company that has made manufactured Rafale jets? Dassault Aviation. ठीक है, ये पता होना चाहिए. ओके हाँ, तो Dassault एविएशन कर आप देखोगे ये 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है. कुछ कैपेबिलिटीज है 5th जनरेशन की, बट लार्जली इट इज कंसिडर्ड एज 4.5 जनरेशन. Dassault कंपनी है ना, रशिया की, सॉरी फ्रांस की कंपनी व्हिच हैज मेड इट. ओके, सो वी हैव बॉट इट, है ना. ठीक है ना, हैव 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. तो इसी ये आर्टिकल में डिस्कस किए हुए हैं कि चाइना ने दिखाया था, चाइना की इन चेंगडू प्रोविंस इन सिचुआन एक वीडियो वायरल हुआ. उसमें दे हैव दिस वीडियो इज बीइंग शोन कि ये वाली जेट परहैप्स दिस इज अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एंड ऑल. ये J-20 स्ट्रीट फाइटर. तो ये सब न्यूज़ में था. ठीक है. खैर, now we were talking about Bhopal gas tragedy. Again it is in the news. Again it was like in the Hindu editorial, the Hindu newspaper. On page number 10 it's talking about. Actually क्या हुआ था, I hope you are aware कि second or 3rd December 1984, हाँ 2nd 3rd December 1984 we had seen Bhopal gas tragedy. इसमें हुआ ये था कि भोपाल इज अ प्लेस इन मध्य प्रदेश. वहां एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उसमें से एक गैस लीक हो गई थी and which killed thousands of people. And what is the name of the gas? ये पूछा है कई बार एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में. तो जो 1984 से अगर आप 40 years कैलकुलेट करोगे, so now it is 2024 दिसंबर, अब वो भी खत्म हो गया. so now it's 1 month ahead, 40 years plus 1 month. तो 40 साल बाद लगभग जो वहां पर उसका जो वेस्ट रखा हुआ था उसको अब रिमूव किया गया. It had killed, it is said that it had killed more than 5,000 people or something like that. तो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो गार्बेज वगैरह बचा होता है सबको हटा दिया गया. यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से रिलीज हुआ था एक गैस. उस गैस का नाम क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी? व्हिच किल्ड सो मेनी पीपल. ये मैंने देखा है कई सारे एग्जाम में पूछते हुए. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. So that is actually called as methyl isocyanate. देखो, let me show. ये वाला गैस methyl isocyanate. This you should know because I have seen question. ये पूछते हुए कि कौन सा गैस था. And ये इसका इंसिडेंट हुआ था. तो
है ना। और इसलिए जब चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 दिसंबर 1984, तो 2 दिसंबर को वी ऑब्जर्व नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी। सो ये भी आपको पता होना चाहिए दिस, बिकॉज इफ यू सी द CLAT 2021 पेपर, दे हैड आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट डेज एंड थीम्स। सो लोगों ने क्वेश्चन पूछा था डेज और थीम्स पे, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे यू विल गेट टू नो। ओके, फिर एक और आर्टिकल था, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन अमंग 3 फ्रंटलाइन टू बी इंडक्टेड इन नेवी ऑन 15 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। देखो, प्रोजेक्ट 75 के अंदर इंडिया इज एक्चुअली बिल्डिंग 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन। ठीक है, उसमें से जो 6th वन है वागशीर। ये सबमरीन मत होता पनडुब्बी, यू नो अंडरस्टैंड, सबमरीन पनडुब्बी जो पानी के अंदर चलता है। इट इज नॉट शिप। शिप जो है पानी के ऊपर चलता है, राइट, और पनडुब्बी जो होता है पानी के अंदर चलता है। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस। सो आईएनएस वागशीर है, देखो ये 15 जनवरी 2025 को कमीशन हो जाएगा। इससे पहले की जो बाकी 5 सबमरीन्स है दैट हैज ऑलरेडी बीन एक्चुअली स्टार्टेड, है ना, और कमीशन। तो ये 5th वन है। तो अगर जब लॉन्च होगा, आई एम प्लानिंग कि अगर उस टाइम पर न्यूज़ में रहेगा, सो विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट इफ पॉसिबल ऑन दिस आईएनएस वागशीर। तो उसमें मैं डिटेल में बता दूंगा आईएनएस वागशीर के बारे में। So this is all about today's class. Please press the like button, subscribe to our channel. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.